Hi friends, I'm Ragi and today I'm going to bring you with a new topic regarding purification of organic compounds. I'll be discussing a method regarding purification of organic compounds. It's chapter number 12, class 11. So let's begin with the first method of purification of organic compounds, which is sublimation. So sublimation, it involves the direct conversion of solid into gaseous state on heating without passing through the intervening liquid state and vice versa on cooling. See, sublimation में what has been involved is कि there is direct conversion of a solid compound into gaseous state. हमें liquid state जो बीच का state है वो भी नहीं आता, सीधे ही solid gaseous state में convert हो जाता है. So basically sublimation involves the direct conversion of solid state into gaseous state on heating without having intervening liquid state. Fine, and there is vice versa on the cooling. अगर वो cool करेंगे तो vapor से directly it will become solid. There will be no mid state. That means there will be no liquid state in between. Fine. जैसे कि point में only those substances whose vapor pressure become equal to the atmospheric pressure much before their respective melting points are capable of undergoing sublimation. Such substances are called sublimable. That means only those substances whose vapor pressure become equal to atmospheric pressure. Whose vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure much before its melting point. Much before its melting point are capable of undergoing sublimation and such substances are called as sublimable. मतलब कि ऐसे substances, only those substances will undergo sublimation process जिनका vapor pressure इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो भी काफी पहले उसके मेल्टिंग पॉइंट की. सपोज एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट 300 केल्विन है और अगर वो 300 केल्विन से पहले अगर उस 300 केल्विन जो उसका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट है उससे पहले ही उस कंपाउंड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तभी वो कंपाउंड सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर हो जाएगा और उस सब्सटेंस को हम सब्लिमेबल सब्सटेंस कहेंगे. वही लिखा हुआ है, ओनली दो सब्सटेंसेस whose vapor pressure become equal to the atmospheric pressure much before their respective melting points are capable of undergoing sublimation. Such substances are called sublimable. Fine. Since the number of such compounds is expected to be small, therefore the process sublimation is not of general application. भाई इस तरह के जो compounds होते हैं, इस तरह के substances होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट आने से पहले ही उनका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो रेयर ही मिलते हैं. दे आर मच स्मॉल इन नंबर, उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं. देयरफॉर जो प्रोसेस है सब्लिमेशन, इट इज नॉट ऑफ जनरल एप्लीकेशन, इसको हम जनरली अप्लाई नहीं करते हैं. तो सिंस द नंबर ऑफ सच कंपाउंड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉल, देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज नॉट ऑफ जनरल एप्लीकेशन. Now, the process of sublimation is very useful in the purification of such solids which sublime on heating and are associated with non-volatile impurities. The process जो sublimation का है ये उन compounds के लिए बहुत ज़्यादा useful है purification में, जो sublime हो जाते हैं on heating, जो sublime हो जाते हैं on heating and are associated with non-volatile impurities. So the process of sublimation is very useful in purification of only those compounds which become sublime on heating, which becomes sublime मतलब in the sense जब हम उनको हीट करते हैं कुछ इस तरह के कंपाउंड्स, वही जो मैंने आपको बताया, जैसे हमने उनको हीट किया वो सब्लाइम हो गए. मतलब सब्लिमेशन में आपको बताया था इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस. तो अगर वो इस फॉर्म में आ जाते हैं, they are also associated with the non-volatile impurities. Non-volatile impurities का मतलब है ऐसी impurities जो उड़ नहीं सकती. volatile का मतलब है कि सपोज मैंने कोई कंपाउंड लिया, एयर में रखा और वो एकदम से उड़ गया, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पता ही नहीं चला वो कंपाउंड कहाँ चला गया. अभी तो लिक्विड था, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स
डोंट नो कि वो गया कहाँ। और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज मतलब सॉलिड इम्प्योरिटीज, कुछ इस तरह की जो इस तरह का बिहेवियर नहीं शो करती, जो वोलेटाइल नेचर शो करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज वेरी यूजफुल इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड्स विद सब्लाइम ऑन हीटिंग एंड एसोसिएटेड विद नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। ठीक है, नाउ आई विल बी टेलिंग यू द प्रोसेस रिगार्डिंग द सब्लिमेशन, कि किस तरह से सब्लिमेशन टेक प्लेस होता है। फाइन, सो नाउ विल बी डूइंग द प्रोसेस रिगार्डिंग द सब्लिमेशन। So, let's start with the process of sublimation. Fine. So, first point is the impure substance is taken in china dish covered with perforated filter paper over which an inverted funnel is placed. पहले हम चाइना डिश लेते हैं। चाइना डिश के अंदर अपना जो हमारा भी इम्प्योर सॉलिड है जिसको हमें प्योरीफाई करना है, उस चाइना डिश में हमने उस कंपाउंड को डाला और उस चाइना डिश को हमने कवर कर दिया परफोरेटेड फिल्टर पेपर से। उस फिल्टर पेपर पे हमने छेद कर दिए, ढक दिया चाइना डिश को फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर में छेद कर दिए। और फिर अब उस चाइना डिश पे हमने इन्वर्टेड फनल, फनल जो होता है ना, देखा होगा लैब में फनल, वो फनल को इन्वर्ट करके उस चाइना डिश पे हमने रख दिया। द स्टेम ऑफ द फनल इज प्लग्ड विद अ लिटिल कॉटन। जो स्टेम है, जो लंबा उसका शेप है फनल का, उसको स्टेम कहते हैं। स्टेम ऑफ द जो मेरा फनल है उसको मैंने किससे प्लग ऑन कर दिया? कॉटन से कर दिया मैंने प्लग ऑन हीटिंग द चाइना डिश, ऑन हीटिंग द चाइना डिश ऑन अ सैंड बाथ, वेपर्स ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड rises up, passes through the holes in the filter paper and condense on the cooler walls of the funnel, leaving behind the non-volatile impurities in the dish. अब हमने चाइना डिश को सैंड बाथ पे रखा और हीटिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे से हम हीट स्टार्ट करेंगे तो जो वोलेटाइल जो मेरा उसमें कंपाउंड था, जो मेरा वोलेटाइल वेपर्स तो वोलेटाइल सॉलिड था, तो वोलेटाइल सॉलिड के जो वेपर्स है वो राइज अप करेंगे, फिल्टर पेपर को पास ऑन करेंगे और जो फनल की जो व्हाट वी से दीवारें हैं, जो फनल की जो वॉल्स हैं, उस पे जाके इट विल सेटल डाउन, इट विल कंडेंस ऑन। तो क्या हो रहा है, स्टेम ऑफ द फनल प्लग ऑन कर दिया विद कॉटन ऑन हीटिंग द डिश on a sand bath, vapors of the volatile solid rises up, passes through the holes in the filter paper and condense on the cooler walls of the funnel, leaving behind the non-volatile impurities in the dish. अब इस तरह से प्रोसेस होता रहेगा तो हमारी चाइना डिश में क्या बच जाएगा? Leaving behind the non-volatile impurities, ऐसी impurities जो जिनको हम वेपर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो नॉन वोलेटाइल जो इम्प्योरिटीज हैं वो चाइना डिश में रह लेंगी और जो वोलेटाइल इम्प्योरिटी, वोलेटाइल जो मेरा सॉलिड था वो जो फनल है उसकी दीवार पे जाके कंडेंस अप हो जाएंगे। तो आई विल बी getting the pure solidified form of my compound of my organic solid. Fine. Now camphor, naphthalene, anthracene, benzoic acid, iodine, etc. are purified by the sublimation process. In case of organic compounds which are decomposed by heat, sublimation is done under reduced pressure. So organic compounds जो decomposed हो जाते हैं on heating, sublimation हम उस केस में करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर। विल बी स्टार्टिंग इट लेटर ऑन। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बताया जो आपको अच्छे से क्लियर कर देगा अबाउट द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो देखिए, इट इज माय बंसन बर्नर फ्लेम एंड ये मेरा है, क्या कहते हैं इसे, हम सैंड बाथ है ये। इसमें मैंने चाइना डिश को प्लेस किया। चाइना डिश में मेरे पास एक इम्प्योर मैंने अपना सॉलिड लिया और चाइना डिश को फिर मैंने, ये फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर से ढक दिया जिसमें छेद थे, उसके ऊपर मैंने इन्वर्टेड ये फनल को प्लेस कर दिया, इन्वर्टेड फनल को मैंने प्लेस अप कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने हीट किया तो जो इसमें वोलेटाइल जो सॉलिड था, वोलेटाइल का मतलब है जो हवा में उड़ जाता है, जैसे हम उसको रखते हैं, उसको हीट करते हैं ना। वोलेटाइल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जैसे हमने हीट किया वो एकदम से गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे अगर मैं उसको यहाँ इन एयर रखती हूँ, बाहर किसी भी सराउंडिंग के अंदर रखती हूँ ओपन करके, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो उड़ जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें कंटेनर के अंदर। तो वोलेटाइल जो मेरा सॉलिड था वो गैशियस फॉर्म में फिल्टर पेपर को उसने पास किया और जो ये मेरा फनल है, इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो वॉल्स है एक थोड़ी ठंडी है, तो इसमें जाके वो कंडेंस हो गया। सो ये जो मैंने आपको बताया है, ये साइड में क्या है मेरे, इट इज सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है। ये जो मैंने मिक्सचर लिया है, ये मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। और यहाँ जो मेरा कंडेंस होके आया है, इट इज द प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दैट मीन्स प्योर फॉर्म है अमोनियम क्लोराइड का इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ये मेरा इन्वर्टेड फनल है, ये कॉटन प्लग से मैंने इसको ढक दिया था।
ठीक है। और यहाँ इस वाले एटमॉस्फेयर के अंदर आई एम हैविंग वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड मतलब वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड। तो वॉलेटाइल सॉलिड इसमें हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, दिस इज सैंड बार, दिस इज चाइना डिश, दिस इज द फिल्टर पेपर, छेद किया हुआ, परफोरेटेड किया हुआ। ये मेरा मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का। इसको जब हीट किया तो वेपर्स बने, इधर वेपर्स बने अमोनियम क्लोराइड के, और वो कंडेंस हो गए इस वॉल्स पे, फनल की वॉल्स पे, और वो बने सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस रिगार्डिंग दी सब्लिमेशन method, the purification of organic compounds. This is one of the method of purifying the organic compounds. I hope this method is very much clear to you, but still if you are having any doubt regarding this topic, regarding the method of purification of organic compound, that means sublimation, please do ask your doubts in the space given below. Well, this brings me to the end of this session, and it's me Raki saying you all goodbye.